Hello and welcome to the Economic Current Affairs session where we will be covering 7 major developments from the last 1 week, which is very important for our upcoming prelims examination of 2026. Now, before I move forward and start discussing the very first development, which is with respect to the crop diversification, let me just brief you through the initiatives that I'm running for the students जो 2026 में पेपर देने वाले हैं and for the students जो 2027 या 28 में अपीयर करने के लिए प्लान कर रहे हैं. So for 2026 aspirants there is a very intensive program which is going on already जहाँ पे starting from microeconomics each and every concept will be built till infrastructure, which is very important for you to attempt those 15 to 18 questions that comes every single year from the economy section of द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. क्लास में आपको सबसे पहले जो क्लासेस हैं वो लाइव फॉर्मेट में होंगी. रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल. ऑल्सो एट द सेम टाइम आपको क्लास से पहले हैंडआउट्स दिए जाएंगे विच विल बी रेंजिंग बिटवीन 15 to 16 पेजेस. दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिवाइज बिकॉज दैट विल कवर योर स्टैटिक पोर्शन. इट इज एम्बेडेड विद दी key data points from the economic survey and budget and the current affairs till the March 2026 along with mapping last 10 years of previous year questions along with what is the exam trap alerts. ऐसे अलर्ट्स, ऐसे बॉक्सेस जो आपका अटेंशन वहाँ पे ड्रॉ करेंगे जहाँ पे आपका स्कोप है मिस्टेक या हाई प्रोबेबिलिटी है आपकी मिस्टेक करने की इन द एग्जामिनेशन. सो ऑल ऑफ दिस is included in the 15 to 16 pages handout which is being given to the students before the class, and that is what is being taught in the class. Moving on to next is the initiative for 27 and the 28 aspirants. So the very first program is the foundation program जो 2nd of April से start हो रहा है, which will be focusing on the prelims and mains, concepts building for prelims and mains for the aspirants जो 2027 या 28 में पेपर देंगे along with sectional test after the completion of every unit. So that is equivalently included in the package of UPSC 2026 program, that is economy for prelims program. In case if you are stuck with the very basics and you are yet not clear with NCRTs, and then that is UPSC economy starter pack is your go to pack जहाँ पे आपको पूरी NCRTs वर्कबुक के थ्रू कवर करवाई जाएगी. कैसे? बिकॉज देयर विल बी अ वर्कबुक दैट विल बी गिवन टू यू एंड यू नीड टू फिल इट. व्हाइल यू आर फिलिंग इट तो क्या होगा, आपको रिकॉल करने में हेल्प होगी कि ओके दीज आर द कॉन्सेप्ट्स दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड, आई नीड टू कॉल, आई नीड टू रिप्रोड्यूस इन ऑर्डर टू फिल इन दीज ब्लैंक्स अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस. सो एंटायर 9th to 12th की NCRTs आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ practice workbooks along with the YouTube sessions which are available for free for every student to watch and learn from that. Along with that पूरा syllabus. अच्छा, एक problem आती है that how do we navigate through the different set of books that are available in the market. कुछ बच्चे नितिन सिंघानिया, कुछ बच्चे रमेश सिंह, कुछ बच्चे संजीव वर्मा पढ़ना प्रेफर करते हैं. आप कोई सी भी किताब पढ़ो, वो पढ़ो जो आपको समझ आती है. बस मेक श्योर करो जितने भी मैंने टॉपिक्स दे रखे हैं माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग में which is a part of the starter pack only. You need to make sure that you are covering each one of them. इसकी डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी और इसकी डिटेल मिलेंगी आपको मेरी वेबसाइट विच इज़ learn.nankinomics.com पे, जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में भी अटैच कर रखा है. चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है, 7 न्यूज़ कवर करनी है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद दी वेरी फर्स्ट डेवलपमेंट जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला है कि भाई इंडिया में एग्रीकल्चर में वी नीड टू प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. किससे डाइवर्सिफाई करना है? क्योंकि हमें ये पता है बात कि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स क्या सो कर रहे हैं, क्या ग्रो कर रहे हैं, क्या किस चीज़ की क्रॉपिंग कर रहे हैं. राइस एंड वीट का कल्टिवेशन मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं. ठीक है. सो सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेंटर को टेक सम स्टेप्स विच प्रमोट्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन आर कंट्री, बिकॉज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. किसके लिए? हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए, हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, हमारे इम्पोर्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस करने के लिए. ठीक है. सो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स की कल्टीवेशन करना rather than just being dependent on the cultivation of rice and wheat. Now the first question that should pop in your head is कि ऐसा क्या रीज़न है कि डिस्पाइट
after 75 years of independence and so many initiatives, schemes being run by the government, still India के जो farmers हैं, they want to practice the cultivation or they want to cultivate rice and wheat. तो हमें अपने सिस्टम में फ्लॉज या बॉटलनेक समझने पड़ेंगे. सो आंसरिंग दिस क्वेश्चन कि व्हाई द डाइवर्सिफिकेशन हैज़ नॉट हैपेंड इज द वेरी फर्स्ट रीजन इज द प्रोक्योरमेंट असिमेट्री. तो हम सबको पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके अंदर 22 क्रॉप्स जो है वो कवर्ड होते हैं. ठीक है, तो कहने को तो 22 क्रॉप्स हैं, लेकिन जब एक सर्वे हुआ तो पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे क्रॉप्स प्रोक्योर होते हैं इट इज़ द राइस एंड वीट, जबकि पल्सेस भी एमएसपी के अंडर आती हैं. तो उसके बावजूद क्यों फार्मर्स पल्सेस का कल्टीवेशन करना नहीं चाहते या बहुत ही लिमिटेड स्केल पे कर रहे हैं? तो पता चला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट एजेंसी है विच इज़ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो फार्मर्स से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फूड क्रॉप्स मतलब राइस फूड क्रॉप्स प्रोक्योर करती है. सो अगेन इट इज़ डिज़ाइन इन सच अ वे दैट मेजॉरिटी ऑफ क्रॉप्स जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर कर रही है इट इज़ राइस एंड वीट. एंड राइस एंड वीट का प्रोक्योरमेंट हो रहा है यहाँ तक ही नहीं, इनफैक्ट ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है राइस एंड वीट का. सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट? इसका सिंपल मतलब होता है कि देर इज़ नो कैपिंग, देर इज़ नो लिमिट ऑन द क्वांटिटी परचेज, जिसका मतलब फार्मर जितना क्वांटिटी लाएगा, लेट्स से एक फार्मर ने 50 kgs ऑफ राइस प्रोड्यूस किया है एंड फार्मर उसको मंडी में लेके आया है टू बी सोल्ड एट एमएसपी. सो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विल नॉट पुट अ लिमिटेशन कि आई विल जस्ट प्रोक्योर 30 kgs और 10 kgs फ्रॉम यू. ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है, जितना फार्मर लाएगा गवर्नमेंट वाया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उसको प्रोक्योर करेगी ही करेगी. सो दिस इज समथिंग नॉट अ न्यू डेवलपमेंट. ये ग्रीन रेवोल्यूशन विच इज़ 1971-72 के टाइम से हो रहा है. ठीक है ना, जिसकी वजह से फार्मर्स के दिमाग में एक माइंडसेट डेवलप हो चुका है कि राइस एंड वीट जो है ना वो सेफ क्रॉप्स है. क्यों? क्योंकि मेरे पास अश्योर्ड बायर है. अगर मेरा राइस या वीट जो मैंने कल्टिवेट किया है बाजार में नहीं बिकेगा तो गवर्नमेंट तो इसको खरीद ही लेगी एट अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस. नाउ दैट इज नॉट द केस विद दी पल्सेस. तो पल्सेस के साथ क्या है? पल्सेस का प्रोक्योरमेंट नहीं होता. पल्सेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड और इंक्लूडेड अंडर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिस्ट जो 22 क्रॉप्स है. देन व्हाट इज द केस? कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? द प्रॉब्लम इज पल्सेस का जो प्रोक्योरमेंट होता है वो अंडर प्राइस सपोर्ट स्कीम होता है, जिसको हम ऑलरेडी पुरानी इकोनॉमी वीकली में कवर कर चुके हैं. अच्छा वापस, तो पल्सेस का प्रोक्योरमेंट कहाँ होता है? प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंडर होता है एंड इट इज़ डन नॉट बाय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बट बाय नाफेड विच स्टैंड्स फॉर नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट होता है ऐसा नहीं होता कि मैम कि फार्मर ने जितनी भी पल्सेस प्रोड्यूस करी है, ठीक है ना, हार्वेस्ट करिए, द एंटायर लॉट विल बी परचेज बाय द गवर्नमेंट एजेंसी विच इज़ नाफिद. नो, यहाँ पे देर इज़ नो ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट लाइक दैट ऑफ द राइस एंड वीट. यहाँ पे देर इज़ अ लिमिटेशन कितनी है? दैट up to 30% of the total output produced in the major producing state. मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट जैसे मध्य प्रदेश हो गए, राजस्थान हो गए, तो जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है स्टेट में उसका at max 30% is what NAFED will be procuring under the price support scheme from the farmers. तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई कि जो अश्योर्ड बायर फार्मर के पास ऑप्शन अवेलेबल था ना राइस एंड वीट में, वो पल्सेस के केस में अवेलेबल नहीं है. तो बहुत बार ऐसा होता है कि फार्मर्स को डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है, मतलब lower than their cost of production or maybe somewhere around the cost of production is what the farmers have to sell the pulses at. तो उससे क्या होगा? फार्मर क्या सोचेगा? फार्मर ये सोचेगा कि इससे अच्छा तो आई लेट मी कल्टिवेट राइस एंड वीट, क्योंकि वहाँ पे आई विल गेट अ फेयर प्राइस फॉर माई क्रॉप, ठीक है ना, और मुझे उसमें डिस्ट्रेस सेल भी नहीं करना पड़ेगा. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे समझ आई कि व्हाट हैज़ डिसइंसेंटिवाइज द डाइवर्सिफिकेशन इन इंडिया इज द प्रोक्योरमेंट असिमेट्री ऑफ द गवर्नमेंट. द वेरी नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द इनपुट इकोसिस्टम लॉक इन, जिसका मतलब देखो एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे इनपुट्स चाहिए होते हैं. जैसे सबसे पहले सीड्स, अच्छी क्वालिटी की सीड्स, देन हमें फर्टिलाइज़र चाहिए होते हैं, देन हमें जो पंप्स होते हैं, वाटर पंप्स होते हैं, उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, देन हमको इरिगेशन फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं.
तो अगेन आफ्टर अ सर्वे इट वाज आइडेंटिफाइड दैट कि मेजॉरिटी ऑफ जो इनपुट इकोसिस्टम है इंडिया का, इट इज स्क्यूड, इट इज बायस टूवर्ड्स द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस. मतलब वो इस तरीके से बिल्ट हो गया है ओवर द ईयर्स दैट इट सपोर्ट्स द कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड व्हीट. तो अचानक से अगर हमें स्विच करना है, इफ आई वांट टू मूव टू अनदर क्रॉप अदर देन राइस एंड व्हीट, तो मुझे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे एज अ फार्मर. और हमें पता होता है कि फार्मर के पास इतने स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्सेज नहीं होते कि वो ईजिली डाइवर्सिफाई कर जाए और वो ये सारा रिस्क ले पाए कि अच्छा अच्छी क्वालिटी की सीड्स नहीं मिल रही है ईजिली, देन दे कैन मूव टू अनदर सिटी टू फेच गुड क्वालिटी सीड्स. वो किस पे डिपेंड करेंगे? जो चीज़ आसानी से मिल जाए. और हमें समझ आया कि जो इनपुट इकोसिस्टम है इंडिया के एग्रीकल्चर में, इट इज़ बिल्ट अराउंड टू सपोर्ट द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस ओवर डिकेड्स. नॉट जस्ट द इनपुट बट जो नॉलेज इकोसिस्टम होता है कि गवर्नमेंट के जो हेल्पलाइन सेंटर्स होते हैं, जो एक्सटेंशन सेंटर्स होते हैं, राइट, वो भी मेजरली किससे रिलेटेड अच्छी एडवाइस या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, या मार्केट में सबसे ग्रैन्युलर डेटा अगर हम बात करें इज़ अवेलेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस एंड व्हीट. ठीक है. सो अगेन दैट एक्ट्स एज एन ऑब्स्टेकल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स इन आवर कंट्री. The third important reason is the import policy inconsistency. तो एक दाल होती है which is जो चना दाल होती है, ठीक है ना, वो इंडिया में प्रोड्यूस होती है, कल्टिवेट होती है, ग्रो करी जाती है, लेकिन इसका एक चीपर सब्सटीट्यूट है जो इंडिया इंपोर्ट करता है फ्रॉम द कंट्रीज लाइक यूक्रेन, रशिया एंड कैनेडा. ठीक है. सो बहुत बार फार्मर्स ने ऑब्जर्व किया है कि जब ये cheaper substitute which is the yellow pea which is a cheaper substitute to chana dal which is grown in India, गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत बार जो है इम्पोर्ट ड्यूटीज रिलैक्स कर देती है, रिड्यूस कर देती है. तो उससे क्या होता है? कंपटीशन बिटवीन व्हाट? द चना दाल दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया in vis-a-vis the pulses, the yellow peas which is being imported. तो अब एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट का कंज्यूमर, इंडिया इज़ अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट, अब यहाँ का कंज्यूमर है वो क्या प्रेफर करेगा? ऑब्वियसली जब मेरे पास चीपर सब्सटीट्यूट है, आई विल प्रेफर बाइंग द येलो पी विच इज़ बीइंग इम्पोर्टेड रादर देन द चना दाल विच इज़ बीइंग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड. तो अब फार्मर्स यहाँ पे भी कंप्लेन कर रहे हैं कि जो वहाँ से चना दाल जो येलो पीस आता है उसकी वजह से हमारी जो चना दाल है वो हम सेल नहीं कर पाते हैं, उसका एक अच्छा प्राइस हम फेच नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कल्टिवेशन ऑफ पल्सेस बिकम अ वेरी रिस्की बेट फॉर दी फार्मर्स in India. That is why they don't want to diversify. Safe bet क्या है? Let's cultivate rice and wheat. Last but not the least is the public distribution system and the buffer stock bias. देखो जो public distribution system है जिसमें वो fair price shops और राशन shops आती हैं, उसके थ्रू क्या distribute करती है गवर्नमेंट? Obviously the staple diet of India which is either wheat or rice. Northern belt में it is more wheat which is prevalent. In the eastern, the southern part it is the rice which is more prevalent. So government जब फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू व्हीट एंड राइस डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो बफर स्टॉक किसका क्रिएट करेगी? ऑब्वियसली व्हीट एंड राइस का. तो बफर स्टॉक क्रिएट करने के लिए किसका प्रोक्योरमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड होगा? ऑब्वियसली राइस एंड व्हीट का. तो पल्सेस का तो प्रोक्योरमेंट हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना. किसमें? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है तो प्रोक्योरमेंट भी नहीं हो रहा, जिसका मतलब अगेन इट इज़ ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन इंडिया. व्हाट इज नॉट सपोर्टिंग? द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड द बफर स्टॉक क्रिएशन इन इंडिया. तो हमें 4 रीजन समझ आए कि ओके दीज आर द रीजन्स विच इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ डिसइंसेंटिव फॉर द फार्मर्स टू नॉट डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न. डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये तो हमने स्टार्टिंग में समझ लिया था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए. एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन सबसे पहले तो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन प्रिजर्व करने के लिए. क्यों? क्योंकि जो पल्सेस होती हैं वो लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं, दे हेल्प इन फिक्सिंग द नाइट्रोजन फॉर द सॉइल, जिससे उसकी फर्टिलिटी रिप्लेनिश होती है. नाउ बिकॉज वी आर नॉट सोइंग पल्सेस, ठीक है, तो फिर नाइट्रोजन कैसे फिक्स होगा? सॉइल की फर्टिलिटी कैसे वापस रिप्लेनिश होगी? तो मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली सॉइल की जो हेल्थ है वो डिप्लीट या डिटोयरेट होगी, एंड उसमें हम और क्या कर रहे हैं? केमिकल फर्टिलाइजर्स और डाल रहे हैं, राइट. देन वाटर जो टेबल है हमारी धीरे धीरे डिक्लाइन करती जा रही है. कुछ स्टेट्स, कुछ पार्ट ऑफ पंजाब में तो एकदम जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो ज़ीरो हो चुकी है. क्यों? क्योंकि पंजाब इज़
एक्चुअली नॉट फिट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस, बट वहाँ पे कल्टिवेशन पंजाब एंड हरियाणा में काइंड ऑफ सेकेंड और थर्ड लार्जेस्ट नंबर पे राइस कल्टिवेशन हो रहा है, विच इज़ अ वेरी, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द राइस कल्टिवेशन इट्स अ वेरी वाटर गजलिंग क्रॉप, ठीक है. तो बिकॉज ऑफ फार्मर्स प्रेफरिंग द सोइंग ऑफ वाटर गजलिंग क्रॉप, तो क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल डिप्लीट हो रही है, ठीक है. एंड वाटर दूसरे पर्पजेस के लिए, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए इतना अवेलेबल रेडली नहीं होता. Third is the nutritional security. Majority of population in India is vegetarian, and vegetarians के लिए one of the prominent source of protein intake is pulses, जो इंडिया में produce नहीं कर रहे हैं farmers. क्यों? Because of the issues that we have just recently studied. And last but not the least is कि जो राइस कल्टिवेशन के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है विच इज़ ऑफ द स्टबल बर्निंग. जब राइस का क्रॉप हार्वेस्ट हो जाता है तो जो रेसिड्यू होता है उसको क्या करते हैं फार्मर्स, उसको बर्न कर देते हैं, जिससे पूरा एक ब्लैंकेट क्रिएट हो जाता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर इन द रीजन ऑफ Delhi and NCR, and one of the most repeatedly debated topics every single year, but no solution still being taken out for that. So these are the reasons जिसकी वजह से diversification बहुत ज़्यादा essential है, and that is what is being pushed by the Supreme Court कि भाई center should take steps to promote the pulses cultivation by resolving all these issues, starting from the procurement asymmetry which is existing with respect to procurement of crops under the MSP system, then the input ecosystem which is made in a way that it supports the wheat and rice cultivation. Third being the import policy which is very much inconsistent with what we want to achieve. We want to reduce our import dependency, but क्या कर रहे हैं government, import duty को reduce कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से the customers which are very price sensitive are preferring the purchase of the yellow peas over and above the chana dal which is being domestically produced. And last but not the least, public distribution system again biased towards the distribution of staple diet which is rice and wheat. तो इसका solution अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले solution में आप क्या लिखोगे कि obviously public distribution system में pulses को भी include किया जाना चाहिए, जिससे बहुत सारी problem अपने आप resolve हो जाएगी. procurement sort होगा, procurement अगर करना होगा तो जो government है अपने आप steps लेगी कि जो ecosystem है उसको अपने आप change करेगी, that it supports the cultivation of the pulses in India. Now let us look at the quick facts that we need to know for the prelims, which is Food Corporation of India procurement करती है at MSP for rice and wheat, which is open ended, and open ended का मतलब हमने अभी समझा था. पल्सेस का प्रोक्योरमेंट कौन करता है, नाफिद करती है, एंड अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम. येलो पीस क्या है, चीपर सब्सटीट्यूट है ऑफ द चना दाल जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होती है इंडिया में, एंड इंडिया largest producer and consumer of pulses है. At the same time it is one of the largest importer of pulses also. और अगर हमको ये import dependency reduce करनी है then we need to promote the production of dal or pulses in India. Moving on to the next is the Bhavya scheme for development of industrial parks. तो भव्य का फुल फॉर्म इट स्टैंड्स फॉर भारत औद्योगिक विकास योजना, जिसमें गवर्नमेंट क्या प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट बोल रही है कि हम 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाएंगे ऑल ओवर इंडिया ऑन द प्लग एंड प्ले अप्रोच. व्हाट डू वी मीन बाय प्लग एंड प्ले अप्रोच? सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट आपको सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके देगी. गवर्नमेंट क्यों रेडी करके दे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा बॉटलनेक आइडेंटिफाई किया कि जब हम इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप करने जाते हैं, मतलब अगर कोई प्राइवेट पार्टी करना स्टार्ट करती है कहीं पे इंडस्ट्रियल पार्क, तो 2-3 बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है जो हर इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने के दौरान आती है. फर्स्ट ऑफ इट इज़ environmental clearances लेने में बहुत टाइम लग जाता है. देन देर आर सो मेनी रेगुलेटरी अप्रूवल्स, प्लस लैंड को क्लियरेंस दिलवाने में कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप होगा, फिर डिस्प्यूट्स आते हैं तो लैंड को क्लियरेंस मिलने में टाइम लग जाता है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन विच इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से क्या होता है जो कॉस्ट है वो एस्केलेट हो जाती है. जहाँ पे फोकस कहाँ होना चाहिए था कि इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करना है सो दैट मैन्युफैक्चरिंग कैन बी प्रमोटेड, वहाँ से वो सारा अटेंशन डाइग्रेस हो जाता है इन सॉर्टिंग दीज इश्यूज आउट. तो गवर्नमेंट ने बोला लेट अस स्टेप इन, लेट अस एस्टैब्लिश 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स, ताकि हम उसको रेडी करके देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरर्स आएँ, प्रोड्यूसर्स आएँ, MSMEs आएँ, सीधा उन फैक्ट्रीज़ को उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करें एंड प्रोडक्शन को स्टार्ट करें.
तो ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम. अब हम इसके थोड़े थोड़े से डिटेल समझ लेते हैं जो समझना याद रखना ज़रूरी है हमारे प्रीलिम्स के लिए. स्टार्टिंग विद ये जो स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ फंड, मेजॉरिटी नहीं सारी फंडिंग कहाँ से आएगी, इट विल कम फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट. क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो रही है तो कौन सी इंडस्ट्री आएगी, ऑब्वियस सी बात है मैम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आएगी. उसके अंडर एक डिपार्टमेंट आएगा विच इज़ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. एंड इम्प्लीमेंट कौन करेगा, एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर DPIIT जिसका नाम है NICDC. सो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी which is NICDC will be responsible for implementing this project across India. Already it is executing 20 such projects across 13 states. Now there will be 100 plug and play parks which will be identified कि कौन से states में develop करना है, and then NICDC will be taking care of the implementation. क्या हमें आउटले ध्यान रखना है, नहीं आउटले नहीं ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए, लेकिन टाइम फ्रेम ज़रूर ध्यान रखना है विच इज़ 2026 से लेके 6 years तक दिस स्कीम विल बी इन एक्शन. टारगेट क्या है, 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स विच विल बी डेवलप्ड ऑन दी प्लग एंड प्ले मॉडल. पार्क का साइज ओके, सो एज आई सेड पूरे पैन इंडिया बेसिस पे देर विल बी पार्क्स दैट विल बी डेवलप्ड, दैट विल ऑल्सो इंक्लूड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. अब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और जो हिली स्टेट्स होते हैं उनके साथ सबसे बड़ा कंस्ट्रेन क्या होता है, लैंड पार्सल्स की अवेलेबिलिटी का. सो दिस स्कीम्स स्पेसिफिकली मेंशंस कि जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, जो हिली स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो पार्क साइज होगा इट विल बी मिनिमम 25 acres. तो जो एक मिनिमम लिमिट है ना कि यहाँ पे जो लिखी हुई है कि ओके द पार्क साइज विल बी ऑफ 100 acres मिनिमम टू मैक्सिमम ऑफ 1000 acres, दैट हैज़ बीन रिलैक्स्ड for the northeastern and the hilly states. What will be the financial support that will be provided by the central government? It is for every acre the government will be giving 1 crore rupees for creation of infrastructure. अब एक बात और ध्यान रखनी है, मैंने क्या बोला था, ये जो भव्य स्कीम है ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके दे रही है सो दैट प्रोड्यूसर आए एंड दे कैन स्टार्ट अप देयर प्रोडक्शन एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज हम तो उसको सब कुछ रेडी करके दे रहे हैं ऑलरेडी. तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो मैम सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट, नहीं, इट इज़ जस्ट नॉट प्रोवाइडिंग फिजिकल और ऑल्सो कॉल्ड एज कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बट इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर विच विल इंक्लूड टेस्टिंग लैब्स. भाई अगर इंडस्ट्रियल पार्क में ही टेस्टिंग लैब्स है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ है, मतलब हमको वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट कि बस आप आओ एंड स्टार्ट द प्रोडक्शन विच विल हेल्प इन जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विच विल help in adding to our GDP of the country, and because every facility is provided at one stop, so हमारा जो cost of production है वो gradually reduce होगा and which will in turn increase our export competitiveness in the long run. ठीक है, okay. Now what we need to remember is at least 25% of the project cost जो है is provided for establishing the external connectivity. क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल पार्क्स होते हैं इसके लिए बहुत बड़े लैंड पार्सल्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना, जैसे हमने साइज पढ़ा, सो मिनिमम वुड बी 100 crores एंड इट विल गो अप टू 1000 crores. ऑब्वियसली ये थोड़े सिटी एरिया के बाहर एक्सटीरियर साइड्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, कनेक्टिविटी की. तो अब मैंने इंडस्ट्रियल पार्क स्टैब्लिश कर दिया है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, लेकिन कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करी, देन ऑल्सो it is of no use. So that is where Bhavya scheme में government is specially demarcating 25% of the project cost for establishing the external connectivity, which is providing linkage through roads, utility connections and the logistics access. States को किस बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा मैम, क्योंकि 100 पार्क्स डेवलप करने हैं ऑल अक्रॉस इंडिया करने हैं, क्या कोई क्राइटेरिया आइडेंटिफाई स्पेसिफाई किया है गवर्नमेंट ने? यस, बेसिकली गवर्नमेंट ये कह रही है जो स्टेट सबसे पहले अपनी रेडीनेस दिखाएगी, अपने स्टेट में विद इन लॉज के थ्रू रिफॉर्म्स लेके आएगी विच कैन प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दो स्टेट्स विल बी पिक्ड फर्स्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ दीज प्लग एंड play industrial parks. States must form special purpose vehicles so that the project can be executed independently, transparently, and जो states readily reforms लेके आएगी for pushing the growth of infrastructure and the manufacturing and the industrial sector in their country, those will be selected or given preference over other states in India.
गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि वंस पार्क इज़ रेडी एंड इट इज़ अबाउट टू एंटर इनटू द ऑपरेशनल स्टेज, उससे पहले एक सिंगल विंडो क्लियरेंस लेनी ज़रूरी होगी उस इंडस्ट्रियल पार्क को फ्रॉम दी कंसर्न अथॉरिटीज़. व्हाट इज़ प्लग एंड प्ले, ये हम समझ चुके हैं. क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा इससे, हमें पता है कि मैम जब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश होती है, वहाँ पे काम करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, लेबर चाहिए होती है, लॉट ऑफ जॉब्स विल बी क्रिएटेड. प्लस एट द सेम टाइम इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो बी जनरेटेड. कहाँ पे? बैंकिंग सेक्टर में, लॉजिस्टिक सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, राइट. सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द भव्य स्कीम. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज द स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम, अनदर स्कीम जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है फॉर प्रमोटिंग द सेटिंग अप ऑफ द स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स. सो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स क्या हो गए? सिंपल सी बात है, वाटर को यूज़ करके, ठीक है ना. हाइड्रो पावर क्या हो गया? वाटर को यूज़ करके हम पावर जब प्रोड्यूस करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रो पावर. ओके, तो अब इंडिया में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको क्यों ये सब बता रही हूँ, क्योंकि पहले हमारे लिए बेसिक समझना ज़रूरी है, तभी तो हमें करंट डेवलपमेंट समझ आएगी. ओके, तो जो इंडिया में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, बेसिकली अगर उनका कैटेगराइजेशन में देखूँ तो एक होते हैं स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, देर आर माइक्रो एंड मिनी ऑल्सो, बट पहले बेसिक कैटेगराइजेशन देखते हैं. सो देर आर स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड देर आर लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स. हम इनको कैसे, क्या, किस बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी. सो लेस देन 25 megawatts इज द स्मॉल hydropower plants and more than 25 megawatts is categorized as large hydropower plants. Large hydropower projects के साथ मेन इशू क्या आता है बेटा? वो ये होता है कि लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को स्टैब्लिश करने के लिए पहले तो डैम्स बनाने पड़ते हैं. क्यों? क्योंकि हमें जो वाटर का स्ट्रीम होता है वो चेंज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द कैपेसिटी ऑफ लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स. देन अब डैम्स क्रिएट होंगे तो उसकी वजह से लॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल विल टेक प्लेस, एंड नॉट जस्ट डिस्प्लेसमेंट, लॉट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज व्हाट गेट्स जनरेटेड via large hydropower projects. Whereas if we talk about the small hydropower projects, they are very much decentralized. Decentralized का मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस यूटिलाइज नहीं होती है, दे कैन बी सेट अप इन द हिली एरियाज ऑल्सो, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज ऑल्सो. सो एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, उसके नियर अबाउट जो ये प्लान्स हैं वो सेटअप किए जा सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट एक और बेनिफिट होता है कि इनके साथ ना जो ट्रांसमिशन लॉस होता है वो बहुत लो होता है. लो ट्रांसमिशन लॉस क्यों? क्योंकि दे आर सेंटर्ड, दे आर डेवलप्ड अराउंड द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन. तो ट्रांसमिट करने में जो एनर्जी वेस्ट होती है ना वो बहुत कम होती है विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और फ़ायदा क्या होता है इसका? इट इज़ they are very much cleaner as compared to the large hydro projects. Why? Because the large hydro projects, ये conceptual clarity बहुत ज़रूरी है. अगर रश करोगे ना करंट अफेयर्स के साथ तो वहाँ पे कुछ भी कंसेप्ट के बेस कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूछ ली ना, देयर ओनली यू आर डूम्ड. दैट इज़ वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कि पहले बेसिक्स को क्लियर करें. तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो स्मॉल पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, वो क्लीनर होते हैं इन कंपैरिजन टू द लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स. क्यों? क्योंकि दैट रिक्वायर्स द क्रिएशन ऑफ डैम्स विच लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड इट लीड्स टू जनरेशन ऑफ लॉट ऑफ पोल्यूशन ऑल्सो. एंड वाटर का जो फ्लो होता है, स्ट्रीम्स का फ्लो होता है, दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी डाइवर्टेड, चेंज फॉर रनिंग एंड मेंटेनिंग द लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स. दैट इज़ नॉट द केस विद द स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स. अच्छा, तो अब गवर्नमेंट क्या कह रही है? बिकॉज ऑफ द बेनिफिट. अच्छा नहीं, एक चीज़ जो मैं भूल गई तुम लोगों को बताना इज़ जो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, दे कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. और ये ऐसा ट्रैप है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं एंड हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप गलती करोगे ही करोगे. वेराज जो लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं दे कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर. दिस इज़ वन सच थिंग जो अपने नोट्स में तुम लोग ऐड कर लेना. अपने आप से भी दो मैंने मेंशन कर रखा है. ओके, सो बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स जो हमें अभी समझ आए कि स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, दैट इज़ वाई रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या अप्रूव किया है? एक स्कीम अप्रूव करी है फॉर सेटिंग अप ऑफ स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स अक्रॉस इंडिया. ठीक है, इससे बेसिकली गवर्नमेंट इज टारगेटिंग
adding 1500 megawatts of capacity to our the already established capacity. तो देखो अब ये numbers भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाते हैं. तो इंडिया का पोटेंशियल क्या है? क्या पोटेंशियल है कि हम स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के थ्रू कितनी पावर जनरेट कर सकते हैं? अराउंड 21,000 मेगावाट्स. अभी करंट कैपेसिटी कितनी है हमारी? 5100 मेगावाट्स. ठीक है. एंड ये स्कीम के थ्रू हम कितनी ऐड करने की सोच रहे हैं? इट इज़ अराउंड 1500 मेगावाट्स ऑफ एनर्जी इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग टू क्रिएट वाया दिस पर्टिकुलर स्कीम विच इज़ स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम. अब हमने अगेन एक ब्रॉडर पिक्चर फॉर्म करिए. अब हमको सिर्फ ब्लैंक्स फिल करने हैं, पॉइंट्स नोट करने हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं. ठीक है. तो ये जो स्कीम है इसका टाइम फ्रेम क्या है? द टाइम फ्रेम इज़ 26 to 31 जो कि यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन कर रखा है. दैट स्पैन्स फॉर 5 years. ठीक है. प्रोजेक्ट की कैपेसिटी रेंज क्या है? स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स विच इज फॉल्स बिटवीन दिस कैटेगरी. इससे कम वाले हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, मिनी एंड माइक्रो, विच हैज़ दिस पर्टिकुलर कैपेसिटी. बट हमारा ध्यान क्या होना चाहिए? स्मॉल एंड लार्ज में क्या फ़र्क होता है? दोनों की मिनिस्ट्रीज अलग है. एंड हाउ डू वी कैटेगराइज देम? वी categorize them on the basis of the power they produce. Up to 25 megawatts, small categorize होगा. More than 25 megawatts, it is the large hydropower project. Okay. So, this particular जो scheme है, there is this particular 2500 crores is what is being allocated. That is what is being the planned outlay. And 30 crores especially demarcated for making a detailed project report कि whether अगर हम यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करते हैं, whether it is sustainable or not, whether it is suitable or not, that way. Then ये बात तो हमने डिस्कस कर ही ली थी कि भाई जो लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है. बिकॉज उनके साथ प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द सेटिंग अप ऑफ द स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स. What is the type of financial incentive that will be provided by the government? For the northeastern states, for every megawatt capacity, 3.6 crore is what will be provided by the government. And for the other states, it is 2.4 crore megawatt that will be provided. क्या मुझे ये एग्जैक्ट नंबर याद होने चाहिए? नहीं होने चाहिए. एक चीज़ जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली मेंशन करी है कि जितनी भी मशीनरी यूज़ होगी अंडर दिस स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम, 100% ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी शुड बी डिज़ाइंड एंड मेड इन इंडिया इन ऑर्डर टू प्रमोट दी सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर भारत. ठीक है. एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट समवेयर अराउंड 15,000 crore इन टोटल इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली विच विल लीड टू क्रिएशन ऑफ जॉब्स. ठीक है. विल लीड टू एडिंग टू आवर पावर जनरेशन कैपेसिटी. जो चीज़ मैंने बोली थी वो यहाँ पे लिखी हुई है, ये प्लीज़ प्रीलिम्स के लिए याद रखना. ठीक है. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज द रिफॉर्म ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना रीजनल रूरल बैंक्स की न्यूज़ देखते हैं फिर से ये सोचेंगे कि फिर से RRBs न्यूज़ में आ गए. नहीं, अगर आप ये देखोगे इसको कि जो रीजनल रूरल बैंक्स है ना, इसको अगर आप स्टैंड अलोन न्यूज़ की तरह पढ़ोगे देन ऑब्वियसली इट विल ऐड टू योर बर्डन, इट विल ऐड टू योर सिलेबस. बट अगर हमारे दिमाग में ऑलरेडी कंटेक्स्ट सेट है कि गवर्नमेंट सिंस लास्ट more than 10 years, more than a decade, रीजनल रूरल बैंक्स को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रही है via taking different steps. One of the major step is regional rural banks का consolidation चल रहा है, because there was one point of time कि इंडिया में बहुत सारे रीजनल रूरल बैंक्स हो गए थे एंड गवर्नमेंट ने सोचा कि इनको हम मर्ज करते हैं सो दैट इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, इनकी एफिशिएंसीज, इनकी पोटेंशियल को टैप किया जा सके. ठीक है. तो उसी के आगे अब एक फर्दर डेवलपमेंट है, क्योंकि अब रीजनल रूरल बैंक्स का जो कंसोलिडेशन हुआ है अलग अलग फेजेस में, देयर आर सर्टेन रीजनल रूरल बैंक्स विच हैज़ टर्न्ड प्रॉफिटेबल, एंड बिकॉज दे हैव टर्न्ड प्रॉफिटेबल देयर इज़ अ कमिटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, जिन्होंने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को कि देर आर सर्टेन रीजनल रूरल बैंक्स दैट शुड थिंक ऑफ गोइंग फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. IPO लॉन्च करना चाहिए टू अट्रैक्ट मोर कैपिटल फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि IPO से सिर्फ फंड्स नहीं मोबिलाइज होते,
एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, गवर्नेंस इंप्रूव होती है, एंड डेफिनेटली फंड्स तो मोबिलाइज होते ही होते हैं. तो अगर इसको स्टैंड अलोन न्यूज़ की तरह ट्रीट करोगे देन इट इज़ यू आर एडिंग टू योर बर्डन. बट अगर एक ब्रॉडर जो पीछे से डेवलपमेंट होती आ रही है, बस उसमें हमें एक फिट इन करना है, तो ये उन स्टूडेंट्स के साथ डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं आएगी जो ऑलरेडी इकोनॉमी वीकली पढ़ते आ रहे हैं. तो हम क्या बात कर रहे थे कि रीजनल रूरल बैंक्स को लेके गवर्नमेंट जो है बहुत टाइम से स्टेप्स ले रही है. स्टेप्स क्या थे कि गवर्नमेंट रीजनल रूरल बैंक्स को कंसोलिडेट कर रही है ओवर दी ईयर्स. फोर्थ फेज ऑफ कंसोलिडेशन जो हुआ है रीजनल रूरल बैंक्स का, दैट हैज़ बीन क्वाइट सक्सेसफुल. लॉट मैनी स्टूडेंट्स जिनको अभी बेसिक्स क्लियर नहीं है तो उनके लिए पहले हम बात करेंगे जो रीजनल रूरल बैंक्स है वो होते क्या है. नाम से समझ आ रहा है कि एक पर्टिकुलर रीजन के रूरल एरिया को केटर करने के लिए दीज बैंक्स आर स्टैब्लिश्ड. तो ये कौन सी क्लासेस को केटर करते हैं? सो देयर मेन फोकस इज टू केटर टू द एग्रीकल्चरल लेबर, द स्मॉल फार्मर्स, द रूरल आर्टिसंस. ठीक है. एंड दे ऑल्सो फॉल इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं ये कमर्शियल बैंक्स नहीं होते, मतलब दे आर नॉट मेड फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स. बट दैट इज़ वेयर दे गो रॉन्ग. जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं लाइक एनी अदर कमर्शियल बैंक जैसे HDFC, जैसे SBI, दे आर ऑल्सो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स बट दे आर ओन्ड बाई द गवर्नमेंट. ठीक है. फॉर्म विद अ वेरी प्राइम एजेंडा टू सर्व रूरल एरियाज, टू केटर टू अ पर्टिकुलर क्लास इन द रूरल एरिया विच इज़ agricultural labor, जैसे मैंने बताया, rural artisans. They were originated, they were formed in 1976 on the recommendation of Narsimham Committee. ये जो नरसिम्हम कमेटी यहाँ पे 1976 वाली लिखी है, it is not the same जो 1991 वाली थी, जिन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी विच इज़ LPG को प्रमोट किया था. सो द वेरी फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया इज प्रार्थना ग्रामीण बैंक, जो कि यूपी में खुला था, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में खुला था उस टाइम. ठीक है. पर्पस क्या है? सर्विंग टू और केटरिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास इन द रूरल एरिया, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो बैंकिंग पेनिट्रेशन है वो इंडिया में वो काफ़ी पुअर था, एंड देयर वर लॉट ऑफ एरियाज इन इंडिया विच वॉज unserved at that point of time. So to cater to that segment of the population, regional rural banks का idea was promoted, was recommended by the Narsimham Committee. Getting my point? चलो अब इसका ओनरशिप पैटर्न देखते हैं कि रीजनल रूरल बैंक्स, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा ऊपर लिखा हुआ था कि दे आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. तो क्या परसेंटेज होता है? इज इट एंटायरली ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? इज इट ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू? सो द ओनरशिप पैटर्न इज डिस्ट्रीब्यूटेड दैट सेंटर होल्ड्स द majority of the stake, which is up to 50%. Then comes the sponsor bank, and then comes the state government जिसका stake is 15%. Now what is this sponsor bank? Sponsor bank is, let's say ICI Bank wants to enter into regional rural banking domain. तो वो क्या करेंगे? वो अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो करेंगे. टू हुम? टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे वो ऑपरेट करना चाहते हैं, वो एरिया जहाँ पे उनका एक्सपर्टीज़ है. एंड उनकी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? 35%. सो दैट पर्टिकुलर बैंक विच कुड बी एनी बैंक इन इंडिया विच वॉन्ट्स टू एंटर इन टू रीजनल रूरल बैंकिंग इज वॉट इज़ द स्पॉन्सर बैंक. अब एक और ट्रैप, रेगुलेशन एंड सुपरविजन का. जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं दे कम अंडर द रेगुलेशन. रेगुलेट इसको RBI करता है, ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए बार बार बोल रही हूँ. और सुपरवाइज कौन करता है? नाबार्ड करता है. दे आर आइडेंटिफाइड एज शेड्यूल्ड बैंक अंडर द सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट ऑफ 1934. क्योंकि अब ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है तो इनके ऊपर डेफिनेटली एक कंडीशन लगाता होगा RBI विच इज़ ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. तो कितनी एप्लीकेबल है? व्हाट इज़ द लिमिट? क्योंकि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है तो इज इट द 40% लिमिट एप्लीकेबल ऑन देम ऑल्सो? नो, it is much much higher than the other scheduled commercial banks which is 75% they have to adhere to. तो अगर आप देखोगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इनको 75% ऑफ टोटल लेंडिंग हैज़ टू गो टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स. क्या प्रायोरिटी सेक्टर की लिस्ट हमें याद होनी चाहिए? बिल्कुल याद होनी चाहिए. एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या होता है? दे हैव टू बी लिमिटेड टू द डिस्ट्रिक्ट्स, नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स विद इन अ स्टेट. एंड करंटली इंडिया में रीजनल रूरल बैंक्स का नंबर क्या है? इट इज़ 28 रीजनल रूरल बैंक्स. ये कैसे 28 पहुँचे? आफ्टर द कंसोलिडेशंस विच द गवर्नमेंट initiated
फेज वाइज, क्योंकि बीच में अराउंड 200 रीजनल रूरल बैंक्स हैं वो इंडिया में हो गए थे. अगर एग्जैक्ट नंबर पता करना है, इट इज़ 196. तो गवर्नमेंट को लगा ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, प्लस देयर वर सर्टेन इश्यूज दैट वॉज बींग एनकाउंटर्ड बाय रीजनल रूरल बैंक्स. इज बहुत स्लो रिकवरी थी. ये फार्मर्स को, रूरल आर्टिसंस को लोन देते थे एंड वहाँ से बहुत ज़्यादा हाई NPAs हो रहे थे, पैसा वापस आ नहीं रहा था. दैट इज़ वेयर गवर्नमेंट ने सोचा कि इनको कंसोलिडेट करते हैं सो दैट वी कैन प्ले ऑन देयर स्ट्रेंथ्स. ठीक है, क्यों रिफॉर्म्स चाहिए थे ये बात हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर ली है. ठीक है, अनदर एक और प्रॉब्लम जो रीजनल रूरल बैंक्स के साथ गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करी थी इज दे वर लैकिंग दी डिजिटाइजेशन. दे वर not using the core banking solutions, which is a platform, which is a network which is being used by majority of banks in India. They lack digital banking and the risk management system. That is why government phase wise रिफॉर्म्स लेके आई. कैसे? कंसोलिडेट करके. कंसोलिडेशन के लिए भी एक कमेटी है जिन्होंने रिकमेंड किया था दैट एवरी स्टेट शुड हैव 1 RRB. 1 state 1 RRB वॉज रिकमेंडेड बाय दी डॉक्टर व्यास कमेटी, जिनके रिकमेंडेशन पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ था रीजनल रूरल बैंक्स का. तभी तो नंबर 196 से अब कितना हो गया है, सक्सेसफुली 28 रीजनल रूरल बैंक्स हो गए हैं ऑल ओवर इंडिया. ठीक है, नाउ रीसेंट डेवलपमेंट क्या है कि जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस थी उन्होंने बोला क्योंकि नाउ हमने ऑब्जर्व किया है जो बैंक्स है रीजनल रूरल बैंक्स, दे आर ग्रेजुअली टर्निंग प्रॉफिटेबल. ठीक है, इनके ओवर द ईयर्स जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है वो भी रिड्यूस हुए हैं. सो दे शुड गो फॉर IPO for mobilizing the large amount of funds so that they are able to cater to the rural segment in a proper manner. They are able to fulfill the credit needs of the rural area and cater to the needs of rural area. So these are the performance that has been identified for the regional rural banks that they are profitable now. इनके जो NPAs हैं वो भी ड्रास्टिकली रिड्यूस हुए हैं एंड दे आर स्टैंडिंग एट 5.4%. बट अगर एजुकेशनल लोन्स की बात करें वहाँ पे NPAs ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स अभी भी बहुत ज़्यादा है. की रिकमेंडेशंस क्या है? IPO route has been recommended for the regional rural banks. At the same time, the other recommendation is the regional rural banks should utilize the credit guarantee fund scheme for educational loan so that जब ये educational loan दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पे NPAs बहुत ज़्यादा थे. ठीक है, so there should be a credit guarantee scheme that should be taking the guarantee on behalf of the borrower कि अगर वो पैसे वापस नहीं कर रहे so money will be returned to the regional rural bank via this particular fund which is the credit guarantee fund. And also another major recommendation is on the problem जो यहाँ पे हमने identify करी थी कि majority of जो regional rural banks हैं they are very low on technology adoption. So that is what is being recommended by the standing committee on finance that AI driven जो system है that needs to be adopted so that early flagging red flags could be escalated in a very time bound manner. तो अब हमें प्रीलिम्स के लिए क्या बातें याद रखनी है? प्रीलिम्स के लिए हमको ये सारी बातें जो है वो ध्यान रखनी है जो मैंने इस बॉक्स में डाल दी है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेवलपमेंट फ्रॉम द लास्ट वीक इज द कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट्स इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स. तो कैप्टिव पावर प्लांट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम बेसिक्स को सॉर्ट करेंगे. कैप्टिव पावर प्लांट्स क्या होते हैं? देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील, जैसे कि सीमेंट, जिनको बहुत ज़्यादा पावर या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है. सो रादर देन बाइंग दी इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द जनरेशन कंपनीज ऑल्सो कॉल्ड एज जेनकॉज, व्हाट दे डू इज दे सेट अप देयर ओन पावर प्रोडक्शन प्लांट. खुद ही पावर प्रोड्यूस करते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं. क्या फ़ायदा होता है उससे? एक तो ऑब्वियसली कॉस्ट जो है वो लेस होती है एंड एट द सेम टाइम जो सप्लाई है उसकी स्टेबिलिटी भी ये जो प्लांट्स हैं वो मेंटेन कर पाते हैं. ठीक है, तो फिर इशू क्या आया? क्या रीसेंट न्यूज़ है? पहले हमने क्या समझा कि जो ये कैप्टिव पावर प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जो हेवी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको बहुत ज़्यादा पावर के कंजम्पशन की ज़रूरत होती है, सो दे रादर देन बाइंग दी पावर फ्रॉम द GenCos and the distribution companies, they set up their own power production unit and
जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाती है एंड स्टेबल सप्लाई भी वो लोग मेंटेन कर पाते हैं. सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया था कि ये जो कैप्टिव पावर प्लांट है ना, इसके ओनरशिप को इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो निकल के आ रहे थे. कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब हम किसको अच्छा क्या है, जैसे मान लीजिए कंपनी है, उसकी सब्सिडरी भी हो सकती है, उसकी होल्डिंग कंपनी भी हो सकती है. ठीक है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, उसकी बहुत सारी सब्सिडरीज़ हैं. सो जो अब ये सब्सिडरी है, अगर वो होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी के कैप्टिव पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी या पावर ड्रॉ कर रही है ना, तो हर्डल्स, डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे थे कि दिस इज़ नॉट कॉल्ड एज अ कैप्टिव पावर कंजम्पशन, जबकि होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी बोल रही है मेरी ही तो सब्सिडरी है. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज इन द ओनरशिप पैटर्न बहुत सारे डिस्प्यूट्स निकल के आ रहे थे. दैट इज़ वाई मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बोला कि हम ना अमेंड करते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी रूल्स को सो एज टू रिकॉग्नाइज दीज मॉडर्न कॉर्पोरेट ओनरशिप स्ट्रक्चर. तो क्लियरली जो नए रूल्स हैं उसमें ओनरशिप पैटर्न को, डेफिनेशन को क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है. नाउ इट इंक्लूड्स a subsidiary or a holding company and other subsidiary of the same holding group. It will be considered as a single captive user. Earlier क्या था, अगर कंपनी है, ठीक है, उन्होंने अपना एक पावर प्लांट सेटअप किया है, तो अगर कोई और उस पावर प्लांट से, मान लीजिए मेरी पेरेंट कंपनी, मेरी सब्सिडरी अगर पावर यूज़ कर रही है, तो उसको कैप्टिव कंजम्पशन नहीं माना जा रहा था, डिस्प्यूट हो रहा था एंड उससे ऑब्वियसली प्रोसीजरल डिलेज एंड डिसरप्शन क्रिएट हो रहा था इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. तो अब सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने बोला, विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बोला, लेट्स क्लैरिफाई व्हाट डू वी मीन बाय ओनरशिप व्हेन इट कम्स टू द कैप्टिव पावर प्लांट्स. अलॉन्ग विद दैट कुछ कंडीशंस लगाई. कंडीशन क्या है कि जो कैप्टिव पावर प्लांट है उसकी 26% से ज़्यादा ओनरशिप किसके पास होनी चाहिए, कैप्टिव यूज़र के पास होनी चाहिए, एंड 51% से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो वो पावर प्लांट जनरेट करेगा ना, दैट विल बी यूज्ड बाय दी होल्डिंग कंपनी और इट्स सब्सिडरीज. ठीक है, ऐसा है कि उसके अलावा अगर कुछ बचता है तो देन इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट. अदरवाइज more than 51% of the electricity has to be consumed by the captive owner of that power plant. Okay, now who will verify this? ठीक है, तो इन केस ऑफ अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, मतलब होल्डिंग एंड सब्सिडरीज एक ही स्टेट में लोकेटेड है, तो एक स्टेट डेजिग्नेटेड नोडल एजेंसी विल वेरीफाई वेदर जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट हो रही है इस पावर प्लांट में उसको कौन कैसे कंज्यूम कर रहा है. एंड अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, मान लीजिए होल्डिंग कंपनी जो है वो राजस्थान में है, वेयर एज जो सब्सिडरी है वो हरियाणा में है, सो इंटर स्टेट सप्लाई होगी, क्योंकि मान लीजिए पावर प्लांट राजस्थान में लगा हुआ है एंड दैट पावर प्लांट इज ऑल्सो सप्लाइंग electricity or power to its subsidiary which is located in Haryana. So in that case, National Load Dispatch Center will verify the flow of power from one state to another. In case माना जाता है अगर कि conditions ये जो ownership वाली in electricity consumption वाली are not being met by the respective industry, respective producer, then पेनल्टी लगेगी. पेनल्टी क्या लगेगी, क्रॉस सब्सिडी चार्जेस लगेंगे. अब क्रॉस सब्सिडी चार्जेस क्या होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस रेट पे पावर हमें सप्लाई होती है घर में फॉर रेसिडेंशियल यूज़, फॉर हाउस होल्ड यूज़, दैट इज़ बीइंग सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट. और वो सब्सिडी कहाँ से ड्रॉ हो रही है, बाय सप्लाइंग द पावर एट अ हायर रेट टू फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस. तो अगर गवर्नमेंट कह रही है कि ऊपर की जो दो कंडीशंस है आर नॉट मेट बाय द पावर प्रोड्यूसर, द कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर, देन क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज लगेगा. देयर विल बी एडिशनल सरचार्ज दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन दैट रिस्पेक्टिव प्रोड्यूसर हु हैज़ देयर ओन कैप्टिव पावर जनरेशन प्लांट. ठीक है, सो क्या होता है कैप्टिव जनरेशन प्लांट, वो हमने समझ लिया. कौन से एक्ट में डिफाइंड है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में डिफाइंड है, एंड इट इज़ ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड अंडर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी. ये ध्यान रखना है. कौन सी दो कंडीशन थी, 26% वाली ओनरशिप की, 51% से ज़्यादा वाली
कंजम्पशन की, मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है, द मोर देन 51% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी शुड बी यूज्ड फॉर ओन पर्पस रादर देन सप्लाइंग इट फॉर the commercial purpose or selling it for the commercial gains in the market. Why it matters for the company is captive power plants were being promoted by the government. The sole reason is obviously अगर हम खुद से ही अपने यूज़ के लिए बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, then definitely it will reduce the dependency as well as the load on the power generation companies as well as the distribution companies also. Now because these power plants, जो captive power plants है, they are located within that industrial facility, ठीक है, so the cost of transmission will also be lower. At the same time, stable supply can also be maintained for the एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स. तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि कैप्टिव जनरेटिंग पावर प्लांट्स से रिलेटेड क्या चेंजेस आए हैं. ओनरशिप पैटर्न जिसको लेके सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट्स चलते रहते थे, उसको क्लैरिफाई किया है गवर्नमेंट ने बाय अमेंडिंग द इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, एंड एट द सेम टाइम 2 कंडीशंस इंट्रोड्यूस करिए. सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी, कंडीशंस मीट करोगे वेल एंड गुड, नहीं मीट करोगे देन देयर विल बी पेनल्टी एप्लीकेबल इन द फॉर्म ऑफ surcharge on the producer. The third thing that we need to know is कि ये जो सप्लाई होगी कैप्टिव पावर प्लांट द्वारा टू इट्स होल्डिंग कंपनी, टू द यूजर ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी जिन्होंने प्लांट सेटअप किया है, हु विल बी मॉनिटरिंग दैट. इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई इट इज़ द स्टेट डेजिग्नेटेड नोडल एजेंसी, एंड इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई दैट विल बी नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर हु विल बी मॉनिटरिंग दैट. Moving on to the next development is relief. Government approves the relief. Relief stands for Resilience and Logistic Intervention for Export Facilitation. हम सबको पता है ये जो गल्फ रीजन है वहाँ पे बहुत क्राइसिस चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑन गोइंग बिटवीन US, इजराइल एंड ईरान, जिसकी वजह से जो हमारी शिपिंग इंडस्ट्री है, हमारे क्या ग्लोबली जो शिपिंग इंडस्ट्री है, दैट हैज़ कम टू अ हॉल्ट. दैट हैज़ this war has caused lot of disruption in the shipping routes of the रिस्पेक्टिव शिपिंग इंडस्ट्री. अब उसकी वजह से बेसिकली क्या हो रहा है, ड्यू टू वॉर, सिंपल सी बात, क्योंकि वॉर है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक्ड है, इट्स अ वेरी मेजर चोक पॉइंट, लास्ट इकोनॉमी वीकली में कवर किया था. तो शिप्स को क्या करना पड़ रहा है, लॉन्गर रूट्स को अडॉप्ट करना पड़ रहा है. अब नाउ इफ दे आर अडॉप्टिंग लॉन्गर रूट्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, तो उसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट की वजह से रिस्क इंक्रीज हो रहा है, एंड रिस्क की वजह से अगेन इंश्योरेंस प्रीमियम इज इंक्रीजिंग. तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा होगा, ठीक है ना, क्योंकि पीछे से कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो गया है. रिस्क को कवर करने के लिए मुझे ज़्यादा बेटर इंश्योरेंस कवर लेना पड़ेगा, एंड अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम विल बी रिफ्लेक्टेड इन द फाइनल कॉस्ट ऑफ माई गुड्स विच कैन इन लॉन्ग टर्म create a problem over the export competitiveness of my goods. तो that is where government ने बोला कि under the export promotion mission, under the export promotion mission government बोल रही है कि we are trying to find a solution for the Indian exporters who are affected by the logistics disruption in the West Asia maritime corridor. ठीक है ना, क्योंकि इंश्योरेंस कवर्स, शिपिंग कॉस्ट महंगी हो गई है. सो बेसिकली गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, हम क्या करेंगे, हम एक्सपोर्टर्स को एडिशनल रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे. एट द सेम टाइम फॉर MSMEs जिनकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, क्या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, हम उनको एटलीस्ट 50% ऑफ द अमाउंट जो उनका फ्रेट एंड इंश्योरेंस में जा रहा था, मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट, नॉट द ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है ना, बेसिक अमाउंट तो वो दे ही रहे थे, बट जो इंक्रीज हुआ है ना, इंक्रीमेंटल कॉस्ट आई है, उसका 50% हम रीइम्बर्स करेंगे. क्या मुझे ये कवरेज रीइंबर्समेंट कितना एक्सटेंड तक होगा वो याद करना ज़रूरी है फॉर एग्ज़ाम? नहीं, हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये जो रिलीफ है
वो किसका पार्ट है एंड वो क्या ऑब्जेक्टिव के साथ गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। तो सिंपल है कि जो फ्रेट प्लस इंश्योरेंस कॉस्ट में एस्केलेशन हुआ है, ठीक है ना, एंड दैट इज कॉजिंग अ ह्यूज डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द इंडियन एक्सपोर्टर्स, उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट इंश्योरेंस कवर्स एंड फ्रेट का रीइम्बर्समेंट प्रोवाइड कर रही है टू द एक्सपोर्टर्स। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन एंड स्कीम डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये जो रिलीफ है इट कम्स अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हु विल बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी? इट इज ECGC which stands for Export Credit Guarantee Corporation of India Limited, which again comes under the Ministry of Commerce and Industry. Everything is mentioned in your notes, you don't need to worry. How much outlay is the government projecting for covering or providing a cover to the exporters is somewhere around 500 crores, and it covers all the consignments to UAE, Saudi, Kuwait, Israel, Qatar, Oman, Bahrain, Iraq, Yemen, and एक चीज़ जो नोट करनी है कि कवरेज जो है ना इज जस्ट नॉट फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स बट इट ऑल्सो कवर्स द ट्रांसशिपमेंट ऑल्सो। तो ट्रांसशिपमेंट एक कॉन्सेप्ट होता है, लेट्स से कि इंडिया से गुड्स जाने थे टू यूरोप, ठीक है ना, बट इंडिया से शिप गई पहले UAE, वहाँ पे मेन शिप से जो कार्गो है वो अनलोड हुआ दूसरी शिप में, and then it was loaded and the ship then left for Europe. That is what is called as transshipment. तो government कह रही है under this relief the government will be covering both the consignments related to delivery as well as the transshipment also for the Indian exporters. Now ECGC क्या है हमारा? again बात करी थी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इट्स अ होली ओन सब्सिडरी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड इंश्योरेंस अगेंस्ट व्हाट? provides insurance against the commercial and the political risks to the Indian exporters so that कल को आपका जो पेमेंट होना है अगर उस पर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, ठीक है, या आपके गुड्स का जो परचेजर मतलब इम्पोर्टर हो गया, हम तो एक्सपोर्टर हो गए क्योंकि हम तो सामान भेज रहे हैं, जो आपके गुड्स का इम्पोर्टर हो गया कहीं वो इंसॉल्वेंट हो गया, सो कौन आपको रीइंबर्स करेगा क्योंकि आपने तो कंसाइनमेंट भेज दिया। सो ऑल ऑफ दैट is taken care by the export credit guarantee. Moving on to the last development for this week is the cabotage law. So cabotage क्या एक restriction होती है, ठीक है ना, restriction किस पे होती है? डोमेस्टिक कोस्टल शिपिंग के ऊपर होती है। मतलब इंडिया के एक पोर्ट से अगर दूसरे पोर्ट तक शिप जाएगी, चाहे उस पर गुड्स हो या पैसेंजर्स हो, तो ये रिस्ट्रिक्शन कैबोटाज लॉ ये कहता है कि ओनली इंडियन फ्लैग्ड शिप्स विल बी यूज्ड फॉर कैरिंग कार्गो और पैसेंजर्स बिटवीन टू इंडियन पोर्ट्स। अगर फॉरेन शिप्स की नीड है सो दे वुड नीड और रिक्वायर टू टेक अ लाइसेंस फ्रॉम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। तो बेसिकली अगर कोई कंट्री कैबोटाज लॉ को इम्प्लीमेंट करता है तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट कंडीशंस अप्लाई हो जाती है दैट अगर एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे विद इन द कंट्री गुड्स या पैसेंजर जाएंगे तो उस रिस्पेक्टिव कंट्री की शिप को ही यूज़ किया जाएगा। अब हमें क्या समझना है? हमें ये समझना है कि विद रिस्पेक्ट टू कैबोटाज लॉ इंडिया का स्टेटस क्या है, क्या इंडिया इस लॉ को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करता है या इसके ऊपर कोई रिलैक्सेशंस है। तो 2018 से पहले की बात करें तो इस रिस्ट्रिक्शन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी इंडियन गवर्नमेंट दैट एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे अगर इंडिया में कोई गुड्स या पैसेंजर्स जाने हैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स विल बी यूज्ड। 2018 के बाद थोड़े रिलैक्सेशन आए, ठीक है, थोड़ा इजी किया इस प्रोसेस को, इस रूल्स को, एंड 2023 तक आते हुए ये सिचुएशन आ गई थी कि गवर्नमेंट ने बोला था कि ग्रेजुअली हम कैबोटाज को एंटायरली रिमूव कर देंगे। बट आफ्टर दिस क्राइसिस गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रोल बैक सम ऑफ द रिलैक्सेशंस। जो रिलैक्सेशंस दी थी विद रिस्पेक्ट टू दीज रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट इज planning to take back those relaxation and again go strict with the cabotage law that कि अगर इंडिया में एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे गुड्स या पैसेंजर्स मूव कर रहे हैं then again the government is thinking to levy or implement this restriction that only Indian flagged
vessels will be used for that purpose. Now ये अगर होता है where the government is planning to roll back some of the relaxations, withdraw some of the relaxation, it sparked basically a debate with respect to प्रोटेक्शनिज्म कि भाई हमारे लिए पहले क्या होना चाहिए कि हमें ट्रेड को लिबरलाइज करना चाहिए या हमें पहले अपने कंट्री में एक्सपोर्टर्स को शिपिंग इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए. सो देयर इज अ फॉर एंड अगेंस्ट with respect to taking back these and granting these relaxations. So क्यों ये relaxations, क्यों liberal होना चाहिए government को with respect to cabotage law? Obviously it will help in increasing the competition with respect to the shipping industry of any country. अब जैसे जैसे competition increase होगा तो cost of shipping which is the freight cost वो नीचे आएगी. क्योंकि there is competition and जिसकी वजह से जो shipping companies है they will definitely focus on increasing their efficiency. बट वॉट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट कैबोटाज? ठीक है, इससे क्या होता है कि भाई शिपिंग इंडस्ट्री जो है वो सफ़र करती है. ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज भाई अगर हम रिलैक्सेशंस देते हैं तो क्या था, शिपिंग इंडस्ट्री सफ़र करती है. एंड द लास्ट इज जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है. कौन सी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को? ऑब्वियसली द शिपिंग इंडस्ट्री को. ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू नो विद रिस्पेक्ट टू कैबोटाज फ्रॉम द प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव इज कि गवर्निंग लॉ कौन सा है इंडिया में विद रिस्पेक्ट टू दिस रिस्ट्रिक्शन इज द मर्चेंट शिपिंग एक्ट. What is the nodal ministry? It is the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. And purpose क्या होता है इन restrictions का? Obviously to give protection and promote the domestic shipping industry. तो इसके साथ हमारी जो 7 major developments थी with respect to last week pertaining to economy section and also important for prelims 2026 complete होती है. With respect to the ongoing प्रोग्राम्स फॉर 2026 एंड टारगेटिंग 27-28 ऑलरेडी मैं आपको उसके बारे में ब्रीफ कर चुकी हूँ. उससे रिलेटेड कोई भी आपको डिस्कशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, इफ़ यू वांट टू ask anything with respect to your preparation, then you know what are your go-to sources, what are the go-to channels via which you can stay connected with me, starting from my YouTube channel and moving on to my Telegram and Instagram also. Till then, by the time we meet next week with the same zeal and coverage of the economy weekly current affairs, take care and keep studying hard. God bless you all.